Hello students, today I brought important multiple choice questions including questions of reason assessment type also, and all the questions are from chapter number 2, that is solution. In new book it's chapter number 1 also. So the first question is, which of the following aqueous solution should have highest boiling point? The A option is 1 molar NaOH, B is 1 molar sodium sulfate, C is 1 molar ammonium hydroxide, and the D option is 1 molar potassium nitrate. Okay, so as we can see that all these solutions are ionic solutions, and they can easily be dissociated. So among all these solutions, if we check out the sodium hydroxide, when it will ionize, it will give you Na plus OH minus, and that B is sodium sulfate. On ionization it will give you twice of Na plus SO4 2 minus sulfate. C is your ammonium hydroxide, so it will give you NH4 plus and OH minus. This is your potassium nitrate, it will give you K plus and NO3 minus. So among all these options, sodium sulfate will give you large number of ions, that is 3 number of ions. Okay, because it will have 2 sodium ion and 1 sulfate ion. Okay, so when you will find out I, Y stand for what? I stand for Wonta factor, which is equal to number of ions after dissociation or association divided by number of ions before association or dissociation. Okay, so I for sodium sulfate will be 3, number of ions will be 3, and you should also remember one formula, that whenever Wonta factor is introduced, at the time you have to write I in all the formulas of colligative property. So elevation boiling point, the formula for elevation in boiling point is delta TB is equal to kbm. Delta TB is equal to kbm. This is the formula for calculating elevation boiling point. But as we can see that all the solutions are ionizable, so you have to find out I in this case. So value of I for sodium sulfate will be 3, so its solution will have maximum boiling point. So option B is correct. Okay, now come to question number 2. We have 3 aqueous solution of NaCl labeled as ABC with concentration of 0.1 molar, 0.01, 0.001 molar respectively. The value of Wonta factor for this solution will be. ठीक है, तो आपको ऑर्डर बताना है कि Wonta फैक्टर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो इनमें कौन सा वाला सही है, आपको ऑप्शन देना है. तो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करोगे आप, जैसे कि हमारे पास में मेन जो सॉल्यूशन है वो NaCl का ही है, और NaCl को जब आप आयनाइज करते हो, जब ये डिसोशिएट होता है, तो ये आपको देता है Na प्लस और Cl नेगेटिव. ठीक है, तो चाहे कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, चाहे कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो, चाहे 0.01 हो, चाहे 0.001 हो, सभी तीनों केसेस में जो I की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी. कितनी रहेगी? 2 रहेगी. ठीक है ना, एक यहाँ पर सोडियम का आयन मिलेगा और एक मुझे मिलेगा Cl नेगेटिव का आयन. ठीक है, तो इसीलिए Wonta फैक्टर की वैल्यू है वो तीनों में ही सेम रहेगी. तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा. ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको. उसके बाद में स्टूडेंट, व्हेन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, and question number 3 is, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, the vapor pressure will contain, and given vapor pressure of benzene is 12.8 kilopascal and vapor pressure of toluene is 3.85 kilopascal. ठीक है, तो जब बेंजीन को और टोल्यून को मिलाया जाता है तो आपको बताना है कि क्या चीज़ ज़्यादा होगी, या आपको बताना है किसके वेपर ज़्यादा होंगे. तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में एक बात और यहाँ पे ऐड कर दी गई कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है वो कितना 12.8 है, और वेपर प्रेशर ऑफ टोल्यून कितना 3.85 है. तो जाहिर सी बात है कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो लिक्विड ज़्यादा वोलेटाइल भी होता है, और उसका जो कंपोजिशन होगा वो ज़्यादा भी होगा वेपर फेस में.
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसके वेपर्स भी ज़्यादा होंगे वेपर फेज में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज ए एंड बी आर लिक्विड्स which on mixing produces a warm solution, which type of behavior is shown by this solution। तो जब कभी भी दो सॉल्यूशन को आपस में मिला देते हैं स्टूडेंट्स, और अगर हीट इवॉल्व होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये हमें देखने को मिलता है जब नेगेटिव डेविएशन होता है तब। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ, ये अपना ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। It's a simple question student, it's based on Henry law, question number 5। low concentration of oxygen in blood and tissue of people living at high altitude is due to। तो लो टेम्परेचर तो होगा नहीं, ऑप्शन ये गलत है ये वाला, तो सही आंसर होगा इसका दैट इज़ योर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू KH होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी भी होती है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम घुल पाती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, टिक कर लीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे पॉजिटिव डेविएशन का है। तो पॉजिटिव डेविएशन हमें तब देखने को मिलता है जब ए और बी के बीच का जो फोर्स है वो वीकर हो। कैसा हो? वीकर हो दैन ए एंड बी, ठीक है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स होता है और जो नया फोर्स डेवलप होता है, अगर ये फोर्स वीकर होगा, कमज़ोर फोर्स होगा, वीकर बॉन्डिंग होगी, तभी हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें जब आप नेक्स्ट इसके और ऑप्शन दिए हुए हैं, विल मूव टू नेक्स्ट ऑप्शंस ऑल्सो। तो ऑप्शन जहाँ देखो आपको ये मिल जाएंगे, मीथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। तो मीथेनॉल और एसीटोन को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो सबसे पहले तो बेटा मीथेनॉल में एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जब इसमें एसीटोन मिलाया जाता है तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा हो जाएगा, तो मीथेनॉल और एसीटोन अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मीथेनॉल अल्कोहल में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब इसमें एसीटोन हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीकर हो जाती है, और वीकर फोर्स होते ही जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आ जाओ, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आपसे KH के बारे में पूछ रहा है। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि P इक्वल टू KH, एक्स फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन, एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन, जाई बोलते हैं इसको। और जब आप यहाँ से KH निकालोगे, KH को निकालोगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है यहाँ पर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि हेनरी कांस्टेंट में और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में इन्वर्स रिलेशन है। तो ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, तो जब KH की वैल्यू ज़्यादा होती है गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, मतलब इनमें इन्वर्स रिलेशन है। तो द वैल्यू ऑफ KH इज़ ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, रॉन्ग है ऑप्शन नंबर ए। बी में आ जाओ, ग्रेटर फॉर गैसेस विच लोअर सॉल्युबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट में और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस में इन्वर्स रिलेशन है। देन स्टूडेंट व्हेन you will move to question number 8. In question number 8 also, this is also question based on Henry law. The value of KH is given. आर्गन की जो वैल्यू है हेनरी कांस्टेंट की वो 40.39 है। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आपको दी गई 1.67, और मीथेनॉल की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 1.8 × 10⁻⁵, और इसके बाद में आपको मीथेन की वैल्यू दी गई है आपको 0.413, ठीक है। तो इसमें और आपको अरेंज करना है सॉल्युबिलिटी के पैटर्न में। तो इसमें स्टूडेंट वही बात हो गई है कि जिसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो वैल्यू सबसे कम मुझे ये लग रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर अपना हो सकता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं मीथेन को, CO2 को। तो मीथेन की वैल्यू 0.413 है
और CO2 की वैल्यू 1.67 है। तो दोनों में कम कौन है? तो कम है आपका 0.413। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी है, उसके बाद इसकी है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी? आर्गन की वैल्यू है। आर्गन की जो वैल्यू है KH की, दैट इज़ 40.39, इसलिए आर्गन की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे कम रहेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा यहाँ पर। देन स्टूडेंट्स, यू शुड नो ऑल्सो हाउ टू डू क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन रीज़न एसर्शन टाइप। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको कौन सा ऑप्शन देना है। ये बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, इसमें नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीज़न है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो आप ए ऑप्शन देंगे। अगर आपको लगता है कि एसर्शन रीज़न दोनों ही सही हैं लेकिन जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर नंबर बी दोगे। और आपको लगता है कि एसर्शन सही है अपना लेकिन जो रीज़न है वो गलत है, तो आप सी दोगे। आपको लगता है कि एसर्शन रॉन्ग स्टेटमेंट अगर है लेकिन रीज़न सही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी दोगे। ये है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, एसर्शन में लिखा हुआ है एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर दैन इन वार्म वाटर। बिल्कुल सही बात है, एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अगर जो पानी है ठंडा होता है तो, क्योंकि ठंडे पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न दिया गया है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट एट द सेम टेम्परेचर। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ, तो ऑप्शन हम इसमें कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है द टू लिक्विड्स सेज एक्स एंड वाई बॉयल एट, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 380 केल्विन है। इसके बाद में जो वाई है इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है 400 केल्विन। तो कह रहा है कि वाई ज़्यादा वॉलेटाइल है, वाई इज़ मोर वॉलेटाइल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ये जो कम वॉलेटाइल होगा, ये देर में बनाएगा वेपर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लिक्विड वाई हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट सो इट विल इवापोरेट लेस रेडली। ये बात सही है, क्योंकि वाई का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है तो वो आसानी से इवापोरेट नहीं हो सकता। तो ये बात सही है, मतलब असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? डी वाला है ना, असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट। तो इसमें डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10th वाले क्वेश्चन में डी ऑप्शन रहेगा आपका। तो स्टूडेंट्स, I am very much thankful to those who are watching my videos continuously. You can do one more thing, you can share the video among your friends, among your groups, so that other students can also get benefit. And if you want such type of more multiple choice question from important chapters like electrochemistry and chemical kinetics, I'll definitely provide. Thanks for watching Ajay tutorial.